As the nation mourns the Pahalgam terror attack victims, Congress seems to have insulted the survivors now. While many of the survivors have narrated their horrific ordeal, you've got two Congress leaders, one from Karnataka, the other from Maharashtra, who've stoked controversy by questioning the survivors' version. You first have Karnataka Minister R.B. Timmappa, who said that terrorists didn't ask about religion before shooting people, directly contradicting what really the survivors said. In fact, you had this Congress leader even blaming the government, claiming that this situation is being twisted for religious and political gains. Then you had a similar statement being made by Congress leader Vijay Wadettiwar in Maharashtra, who said terrorists have no caste or religion and added that terrorists should be caught red-handed rather than attempting to twist a narrative. Now, they're claiming that these comments about terrorists targeting Hindus were made for political gains. But the reality is that survivors were the ones who said that terrorists forced them to recite the Kalma at gunpoint, and when they couldn't, they were shot dead. ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗವನು ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ ಹೊಡೆಬಿಡಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है. इस बारे में कोई बात नहीं करता. बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा. अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा. ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है. ये प्लान करके मत करो. टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो. और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो. यही देश के वासियों की भावना है. Let's bring in Ritwik Balekar for more details, particularly Ritwik, on what Vijay Wadettiwar has said. Maharashtra Congress leader, has there been any clarification from Mr. Wadettiwar amid the outrage, or for that matter, has the Congress spoken out? Do they endorse these kind of comments? Absolutely. After his earlier statement, Vijay Wadettiwar has come up with a new statement saying that he just wanted to clarify that there is no religion for terrorism, and the attack, the terror attack, which happened in Pahalgam, it was the effort taken by the Indian Army, and there was no security at all, is what he's trying to underline time and again. But at the same time, he has also backtracked from his earlier statement, stating that this might be done by Pakistan, and they are trying to have a rift between Hindus and Muslims of the country. So now Wadettiwar has backtracked from his earlier statement and is trying to clarify what he said in the beginning. Thanks, Ritwik, for joining us with those details. So you've got all of these comments coming in from Congress leaders, but I want you to listen now to what survivors said when they spoke about the ordeal that they faced and how these terrorists, in what the survivors said, have very clearly said that these terrorists targeted them for their religion. क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी. यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. नहीं आप टेंशन मत लो. अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में. मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो. मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं. भैया तो करेंगे फोन. दब सिमन युवा डिजाइन क्या है. ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो. मैं आ रहा हूँ. मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? 2-3 दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान. मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा. जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ. अरे हिंदू है मुसलमान. मैंने कहा हिंदू, मार दे. पहली गन उसी पे चलाई. मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो. तो उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे.
मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ मोदी को बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद बाकी लोगों को गोलियां चलाई को, और फिर और आ गए, तो तब तक ये लोग भागे जान बचा के किसी तरह ये लोग। जब मेरी भाभी से बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि शुभम को गोली मार दी है और सर के पास गोली मार दी है। उसे कहा था कि हम आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बता सकें कि हमने आपके साथ क्या किया। भावुक क्षण है परिवार के लिए, आप सभी के लिए, लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है, हुआ क्या था, आप लोगों को क्या कुछ बताया गया जेनिफर जी की तरफ से या बच्चों की तरफ से, जो आंखों देखी उन्होंने वहाँ महसूस किया? जेनिफर ने जो कल हम लोगों को भी बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी पीड़ा बताई, उसमें यही सामने आया है कि जब इन कायर आतंकियों ने जब हमला करना शुरू किया तो मेरे भाई ने इन लोगों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को वहाँ से धक्का देके भगाया, और जिसके कारण भागते समय हमारी आकांक्षा बिटिया को गोली लगी पैर में, और जेनिफर जो हमारे बहू है वो नीचे गिरने के कारण बेहोश हो गई, और शायद इसी कारण से वो बच पाई। और जब मेरे भाई को उन कायरों ने रोका और बिठाया अपने घुटने के बल पे, और घुटने के बल पे बिठा के उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। इसका मतलब यही है कि वो एक विशेष धर्म के लोग थे और वो केवल वो देखना चाहते थे कि हमारा वाले को नहीं मारे, और इसी तरीके से अलगाववाद और जो विवाद है और बढ़ते चले जाए। परंतु मेरे भाई ने एक साबित कर दिया, जो कसम उसने शादी के समय ली थी अपनी पत्नी की रक्षा की, वो उसने अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जान दे दी। आप कल्पना कीजिए कि दो लोगों ने जब बोला कि हम मुसलमान हैं, तो आप इन कायरों की हरकतें देखिए कि उसकी पैंट उतारी गई, देखा गया कि इसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और जब देखा कि खतना नहीं है तो वहीं गोली मारी गई। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा वो एक पैगाम लोगों को देना चाहते थे कि हम लोग केवल मुसलमानों को बचाने के लिए आए हैं और बाकी हिंदू और बाकी दूसरे धर्म वालों को मारना चाहते हैं।